especially to use the Roshan Digital Account Initiative and the exciting initiative that Mizan Bank has taken for its customers so they can invest in Pakistan in different products and different schemes. We have a very learned panel today. I'd like to briefly introduce the panel. Mr. Ariful Islam Saab, who is the Deputy CEO of Mizan Bank. We have Mr. Arshad Bhatti Saab from State Bank, a senior official from State Bank. We have Mr. Badiuddin Akbar Saab from CDC. He is the CEO of CDC. We will be joined by Mr. Farooq Habib, who is the Managing Director of Pakistan Stock Exchange very shortly. And we have our own colleague Mohammad Raza Saab, who is a Senior Executive Vice President and Group Head for Customer Service. I will start the seminar with the recitation of Holy Quran, and then we'll formally start the proceeding. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. अब सेमिनार की हम फॉर्मल प्रोसीडिंग का आगाज़ करते हैं. दिस सेमिनार इज स्पेशली ऑर्गेनाइज फॉर आवर एनआरपी कस्टमर्स और आज का हमारा जो टॉपिक है वो मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट और किस तरह हम रोशन डिजिटल अकाउंट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सुकूक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस्लामिक रोशन इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. So we are very happy that most of the customers have joined us. We have over 222 participants on the Zoom. आप हमें Facebook पे भी लाते हैं. अगर आपके कोई सवाल जवाब हैं तो हमारा क्वेश्चन आंसर का जो बॉक्स है आप वहाँ पे अपने सवाल एंटर करें और हमारी टीम आपके तमाम सवालात के जवाब देने के लिए मौजूद है. मीज़ान बैंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा और प्रीमियर इस्लामिक बैंक है और हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपने कस्टमर्स को चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हों बेहतरीन कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करें और तो वो तमाम इनिशिएटिव जिससे कस्टमर अपने बैंकिंग सर्विसेज को इख्तियार कर सकता है, वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसको उसके फिंगर टिप पे और बेहतरीन तरीके से शरिया कंप्लाइंस के दायरे में रहते हुए दी जाए. So without further delay, I would like to invite Mizan Bank Deputy CEO, Mr. Ariful Islam Saab. Arif Saab is a very senior banker, over 34 years of experience banking. He is one of the pioneers of Islamic banking in Pakistan. He is affiliated with Mizan Bank since its beginning. He is a chartered accountant from England and Wales, and he's a member of Institute of Chartered Accountant Pakistan. So, Arif Saab, I will request you to give your welcome address and how digital initiatives of Mizan Bank are helping our NRP customers. Arif Saab, please. Ji, Jazakallah Ahmad, and Assalamu alaikum, and welcome to all the participants. This is really a very exciting opportunity for us. And I think for all non-resident Pakistanis, this is a facility which the State Bank has taken the initiative to launch. And really the idea of the seminar is to give you an insight into what this facility is, what it can allow you to do. And of course, we'll be happy to take any questions. So firstly, I'm grateful to Mr. Badiuddin Akbar and for Mr. Arshad Bhatti, who is representing the State Bank of Pakistan for attending this webinar. Mr. Farooq Khan, CEO and Managing Director of the Pakistan Stock Exchange, will inshallah be also joining this webinar very soon. I will like to start the proceedings by just giving you a quick overview of where we stand on this RDA. RDA is Roshan Digital Account Initiative. And then we have some detailed presentation by Mr. Mohammad Raza, who's our group head, customer service. And then we have our other distinguished panelists who will also give you further details about this exciting new opportunity. So firstly, just to let you know that Alhamdulillah, the RDA initiative was launched recently. And so far the response has been very, very good. To date, more than 6,500 NRP accounts have been opened. We are grateful to our customers for the trust that they've reposed in Mizan Bank. Now, NRPs can avail all services through digital channels. I mean, the wonderful thing about this facility is that for the first time in Pakistan,
you can open an account with Mizan Bank while sitting in the comfort of your home, just at the click of a button. Um, and once your account is opened, then you can use this account to make investments either in the Pakistan stock market or in the fantastic initiative of the State Bank and the government of Pakistan, which is the Naya Pakistan certificate, details of which will be shared with you shortly. And there, the returns being offered by the government of Pakistan for our NRP customers is really very attractive indeed. So inshallah, I'm sure that you will look at it very seriously and invest money with the comfort or knowing that you are able to take your money back at any time without any restrictions or any bureaucratic approvals. Now, Mizan Bank has, of course, always been focusing on, as Ahmed just said, on innovating on different products and services. We have been involved in the capital markets and structuring sukuk and providing guidance and Sharia advisory services to both domestic and international clients. Mizan Bank, in collaboration with the Pakistan Stock Exchange, has launched the KMI 30 Index, the KMI All Share Index, and more recently, the Mizan Pakistan Exchange Traded Fund, the ETFs. Recently, the stock exchange recently launched a number of exchange traded funds, and Mizan is one which has also launched such a fund. So that is also something that is a very exciting new opportunity. Now, this RDA account is directly linked with the CDC, which is the Central Depository, and with a few select brokers that have been authorized to deal in Sharia compliant shares. And by using your RDA account, you can open a CDC account and also an account with a broker, which is required for you to buy and sell shares in the Pakistan stock market. Further details of that will be shared with you in the presentation by Mr. Mohammad Raza, my colleague, and I believe Mr. Badiuddin will also be giving you some details about how this whole process works. In addition to the ability to invest in the Pakistan Stock Exchange, you will also have the ability, as I mentioned, to invest in the Naya Pakistan certificate, and Mizan Bank offers you the Islamic Naya Pakistan certificate, which again Mr. Mohammad Raza will give you some further details on. And in addition to that, Mizan Bank is also directly connected with the with the Defense Housing Authority, both in Karachi, Multan, and in Lahore, I believe. And you can, by using the connection with the DHAs in these cities, you can directly also invest in real estate. Now, I think what I would like to just conclude by saying is that this is the first time that you are able to open an account with a commercial bank in Pakistan without having to visit a branch or physically coming and doing any type of biometric registration or any other requirement like that. And you have the assurance of knowing that you can withdraw and take your money back to your country at any time you like. So I would really urge all of you to please study this facility, visit our website. It's a very simple process to open this account. You are if all documentation is complete, then the turnaround time is less than 48 hours. So you are assured that your account will be opened and activated within a 48-hour period. And then you can use the money that you send into this account in various different asset classes. So I think further details will be given by the presentation by Mr. Mohammad Raza. So I will hand you back now to Mr. Ahmed Ali Siddiqui and Mr. Mohammad Raza. Jazakallah khair. Assalamu alaikum.
Thank you, Arif Saab, for a wonderful introduction about Mizan Bank and how the Russian digital account and Mizan Bank is serving its customer. I would like to welcome Mr. Farooq Khan, Managing Director, Pakistan Stock Exchange. So welcome to the seminar. Now, move on. I would request Mohammad Raza. I'm sorry. Thank you so much. I apologize. Welcome to the seminar. Communication in my calendar, it's at 6:15, so I apologize for being a few minutes late. Thank you, Farooq. Thank you for No problem. We just thank you for joining. Now I would request Mr. Mohammad Raza, Senior Executive Vice President and Group Head Customer Service Group at Mizan Bank. He will give you an overview of what is the Russian Digital Account, how you can invest and utilize this new digital accounting facility to invest in different schemes of Government of Pakistan, Islamic Pakistan certificate, how you can invest in Pakistan Stock Exchange, and how you can invest in Sharia compliant sukuk. Being the leading Islamic bank, our priority is that we offer our customers a platform which is latest, up-to-date, convenient, as well as Sharia compliant. So, Raza Saab, मैं आपसे request करूँगा कि the floor is over to you. Please start the presentation. Okay, जी. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Sadaqallahul Azim. Honorable Mr. Ariful Islam, Mr. Farooq Khan, Mr. Badiuddin Akbar, Mr. Rashid Bhatti, all the participants who have joined us from different parts of the world. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Thank you, Ahmad, for inviting me for this session. This will be a brief, short session where we will be talking about the investments in the Sharia compliance shares and sukuks on Pakistan Stock Exchange. But we will also talk about Russian digital account, Mizan Russian digital account, which is a prerequisite for any investments in this area. But before moving into my presentation, I'll just highlight two things which are very important. सबसे पहली चीज तो ये है कि Russian digital account is a unique initiative by State Bank of Pakistan. लेकिन जब इस RDA यानी Russian digital account के साथ मीज़ान का लफ्ज़ जुड़ जाता है और मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट बन जाता है, तो इसका मतलब ये है कि नाउ इट्स अ शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट. और हमें बड़ी खुशी के साथ ये बताते हुए हमें फख्र महसूस होता है कि आउट ऑफ द 8 बैंक्स व्हिच आर सिलेक्टेड बाय और शॉर्टलिस्टेड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फॉर मार्केटिंग एंड सेलिंग द RDA, Mizan Bank is the only bank which is a dedicated Islamic bank, a fully Sharia compliant bank. So alhamdulillah, this is an honor for us. और जो दूसरी बात, जो अहम बात है, वो ये कि ये जो डिजिटल अकाउंट ओपनिंग जो कि आपको यानी जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है उन्हें जो ऑफर की गई है, ये इस वक्त जो पाकिस्तान में मुकीम लोग हैं उन्हें ये सर्विस ऑफर नहीं है, which means that this is a privilege, special privilege for all our Pakistanis who are residing abroad, जो बाहर मुकीम हैं. और I think this is an excellent opportunity for all of you to invest in Pakistan and especially the Islamic investments. So with this, I move towards my presentation. जैसे कि अभी डिस्कस हुआ, Mizan Roshan is a digital account, as the name implies. It's a Sharia compliant account, specially designed to cater your needs of as an NRP. It's a gateway to Islamic banking or investment opportunities in Pakistan. और इसको हम कहते ही हैं कि it's a new era of lifestyle banking, but with the comfort of having an Islamic banking, Islamic और Sharia compliant. तो जो दिल का इत्मीनान है वो आपका इसके जरिए आता है Sharia compliance से, और जो सिक्योरिटी है वो जो बाकी फीचर्स हैं जो अल्लाह ताला जिस पर हम बात करेंगे वो उसके जरिए मिलती है. It's a totally digital account, so you do not need to visit a branch, visit a bank. आपका टोटल जितना भी आपका प्रोसेस है वो सारा ऑनलाइन होगा. You can open individual account, और अगर आप चाहें तो आप joint account भी खोल सकते हैं. This product is being offered in 4 currencies, PKR में, US dollars में, Great Britain pound में और यूरो में. इन चारों में से किसी भी करेंसी में आप अकाउंट खोल सकते हैं. डॉक्यूमेंटेशन काफी सिंपल है, इंशाल्लाह ताला मैं इस पे अगली स्लाइड्स में आऊंगा, लेकिन इसमें भी आपको कोई चीज फिजिकल करने की कोई जरूरत नहीं है. आपने
ऑनलाइन जाकर और वेबसाइट पे जाकर आपने अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने, और अगर जैसे कि आरिफ साहब ने भी बताया कि अगर तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है जो कि बैंक की रिक्वायरमेंट है, फॉर्म कंप्लीट है, तो इंशाल्लाह ताला आपका अकाउंट खुल के और एक्टिव हो जाएगा विद इन 48 आवर्स। इस अकाउंट में और जो आम अकाउंट जो कि आपने एज एन एनआरटी अगर पहले कभी खोला हो, उसमें फर्क ये है कि इस अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट फॉरेन रेमिटेंस से ही हो सकता है। फॉरेन रेमिटेंस से आप इसको फीड कर सकते हैं और जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं उसका जो प्रॉफिट है वो इस अकाउंट में आ सकता है। इसके अलावा कोई और जरिए से आप इसको क्रेडिट नहीं कर सकते, कोई और कैश और कोई और ट्रांसफर एंट्री इस अकाउंट में नहीं हो सकती। इस अकाउंट में आपको इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी होगी, यू कैन हैव द फंड ट्रांसफर फैसिलिटी, डेबिट कार्ड इस अकाउंट में आपको अवेलेबल होगा, एंड यू विल आल्सो बी प्रोवाइडेड विद अ फ्री चेकबुक। सो इट्स अ न्यू एरा ऑफ लाइफस्टाइल बैंकिंग स्पेशली फॉर द नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी। अब जब आपका ये अकाउंट खुल गया तो आपको इन्वेस्टमेंट या आपको क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, क्या क्या आप इस अकाउंट से कर सकते हैं। तो नंबर 1, आप तमाम बैंकिंग एक्टिविटीज पाकिस्तान में कर सकते हैं। आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप शरिया कंप्लाइंट शेयर्स और सुकूक पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसको इंशाल्लाह ताला हम अगली स्लाइड्स में इन डिटेल कवर भी करेंगे। आप यूटिलिटी बिल्स और फी पेमेंट्स कर सकते हैं जस्ट ऑन अ क्लिक। आपकी जो ऑटो एंड रियल टाइम करेंसी कन्वर्जन भी हो सकती है इस पे। डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर आपको अवेलेबल होगा जिसके साथ आप राब्ता भी रख सकते हैं, और इन केस ऑफ एनी इश्यूज, इन केस ऑफ एनी क्वेरीज आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो सबसे अहम बात इस प्रोडक्ट की है वो ये है कि ये जो फंड आप रेमिट करेंगे रिपेट्रिएबल है, यानी कि आप इसको दोबारा से अपने जहां पर आप मुकीम है आप उसको वहां पर ले जा सकते हैं। तो इजी रिपेट्रिएशन का भी एक जो खास इसका नुक्ता है वो ये है, और आई थिंक ये दिस इज वन ऑफ द की फीचर्स फॉर ऑल आवर एनआरपीज। अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि इस अकाउंट को खोला किस तरह जा सकता है। तो जैसे कि अभी जिक्र हुआ कि इट्स टोटली ऑनलाइन अकाउंट, तो कोई फिजिकल आपने चीज नहीं करनी। आप मिजान बैंक की वेबसाइट पर जाएंगे, वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो वहां पर ओपन न्यू अकाउंट को जब आप लिंक पे जाएंगे तो वहां पर आपको ये नजर आएगा रोशन डिजिटल अकाउंट। उस रोशन डिजिटल अकाउंट को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपने पाक रुपी में अकाउंट खोलना है या फिर फॉरेन करेंसी में खोलना है। जैसे कि बात हुई है फॉरेन करेंसी में 3 करेंसीज में आप अकाउंट खोल सकते हैं। आपका ऑप्शन है, आप कुछ भी सिलेक्ट करें। जब आप इसे सिलेक्ट करेंगे और तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपने नेचर ऑफ अकाउंट कैसा है, आपने इंडिविजुअल अकाउंट खोलना है या आपने ज्वाइंट अकाउंट खोलना है। वो जब आप क्लिक कर देंगे अब आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने करंट अकाउंट खोलना है या सेविंग। ये दोनों कैटेगरीज में मौजूद है, करंट भी होगा सेविंग भी होगा। जब आपने करंट या सेविंग में से किसी एक का इंतखाब कर लिया, अब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ली जाएगी जो कि बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। उस इंफॉर्मेशन को आप जब फिल करेंगे, फिल करने के बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, और डॉक्यूमेंट्स भी इंशाल्लाह ताला हम अगली स्लाइड पर बताएंगे आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, आपने वो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, और जब आप वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर चुकेंगे तो आपसे ये कंफर्मेशन ली जाएगी कि आपने टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ली है। टर्म्स एंड कंडीशन को क्लिक करने के बाद आपने फॉर्म को सबमिट कर देना। जब आप सबमिट कर देंगे तो जैसे हमने बताया कि ये जो अगली स्लाइड है इस पर हमने वो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रखे हैं कि जो आपने सबमिट करने। इसमें स्कैन कॉपी ऑफ योर CNIC, नाइकॉप या POC, इनमें से कोई एक चीज आपने जमा स्कैन करके अपलोड करनी है। पासपोर्ट की स्कैन कॉपी फर्स्ट 2 पेजेस वो आपने स्कैन करके और अपलोड करनी होगी। लाइव फोटोग्राफ्स का एक ऑप्शन है, वो आपने लाइव फोटोग्राफ इसमें अपलोड करना है। साइन एंड स्कैन FATCA एंड CRS, ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की रिक्वायरमेंट है, ये आपको साइन करके इसको स्कैन करना है। साइन एंड स्कैन सिग्नेचर कार्ड, उसे आपको वो आप अपलोड करेंगे। उसी के साथ फिर आप अपने NRP का प्रूफ, दिस इज वन रिक्वायरमेंट, आपने NRP का प्रूफ चाहे वो स्कैन कॉपी और POC की, चाहे आपका वीजा एंट्री या एग्जिट स्टैंप लगी हो पासपोर्ट पर, वो आप अपलोड करेंगे। और फाइनली आपको अपने प्रोफेशन और आपकी सोर्स ऑफ इनकम का प्रूफ देना है। ये आप जॉब सर्टिफिकेट की सूरत में, सैलरी स्लिप की सूरत में, टैक्स रिटर्न की सूरत में जो अवेलेबल आपके पास हो वो आप सबमिट करेंगे। और जब ये तमाम चीजें आप सबमिट कर देंगे तो अगेन विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स इंशाल्लाह ताला आपका ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये तो बहुत ही ब्रीफ सा एक सेशन है, लिहाजा इसमें हो सकता है कि कुछ चीजें आप मजीद भी जानना चाहें। तो हमारी वेबसाइट अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने पूरी तरह पॉपुलेट किया है। उसमें वी हैव अ डिटेल्ड ट्यूटोरियल वीडियो ऑन हाउ टू ओपन एन अकाउंट। तो अगर आपको कोई चीज कभी समझ में ना आए तो आप उस वीडियो पर जाकर पूरा एंड टू एंड आप देख सकते हैं कि अकाउंट आपका किस तरह खुलेगा। अब जब अकाउंट आपका खुल गया तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत सी हैं। उनमें
सबसे पहले जो, क्योंकि आज जिस मकसद के लिए हमने इस वेबिनार का एहतमाम किया है, दिस इज टू इन्वेस्ट इन शरिया कंप्लायंट शेयर्स एंड सुकूक, तो सबसे पहले हम इसी पर बात करेंगे। जब आपने अकाउंट खोल लिया तो जो रोशन डिजिटल का जो पेज है आपका वेबसाइट का, वहीं पर आपको ये वांट टू इन्वेस्ट इन शरिया कंप्लायंट शेयर्स एंड सुकूक का भी ऑप्शन नजर आएगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ करेंगे, तो अब आपको ये आपको बेसिकली सीडीसी के पेज की तरफ ले जाएगा, जो कि क्योंकि आपका सीडीसी का अकाउंट खुलेगा। और उस सीडीसी का अकाउंट खुलने के लिए आपसे सिर्फ 3 चीजें मांगी जाएंगी। आपका अकाउंट नंबर चाहिए होगा, जब आप अपना अकाउंट नंबर डाल देंगे, और उसी के साथ साथ आपको एक वन टाइम पासवर्ड भी डालना होगा, जो कि आपके ईमेल पर आपको मौसूल होगा। वो जब वन टाइम पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद फिर आपको बुनियादी तौर पर ऑप्शन देना होगा कि किस ब्रोकर के साथ आप काम करेंगे। इस वक्त हमारे पास 3 ब्रोकर्स इनलिस्टेड हैं, फाउंडेशन सिक्योरिटीज, आरिफ हबीब लिमिटेड एंड एकेडी। इनमें से किसी एक का इंतखाब करेंगे, एक कैप्चा आप डालेंगे ताकि ये पता चले कि ये रोबोट इसको ऑपरेट नहीं कर रहा, और आप इसको सबमिट कर देंगे। जब आप इसे सबमिट करेंगे तो सीडीसी तकरीबन 24 आवर्स में आपका अकाउंट खोल देगा, और उस अकाउंट की जो मजीद डिटेल है इंशाल्लाह ताला सीडीसी के सीईओ बदरुद्दीन साहब मौजूद है, वो इंशाल्लाह ताला उस पर डिटेल में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बस मैंने आपको बस इतना बताना था कि आपने जब मिजान की वेबसाइट से जब आप ये अकाउंट खोल के और सीडीसी का अकाउंट कैसे ऑपरेट करेंगे, तो जब आप इस सबमिट का बटन दबाएंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और फिर एवरीथिंग विल बी ऑन द पार्ट ऑफ सीडीसी। अगर इसको हम समराइज करें कि आप किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले यू हैव टू ओपन अ रोशन डिजिटल अकाउंट। ये इब्तिदा में भी बात हुई कि दिस इज अ प्रीरिक्विजिट। रोशन डिजिटल अकाउंट आपने खोलना लाजिम है। उसके बाद यू हैव टू ओपन द सीडीसी अकाउंट थ्रू द बैंक वेबसाइट, और उसमें आपने कंसेंट देना है बैंक को कि बैंक जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन सीडीसी को पास ऑन कर दे, और आपने सीडीसी के टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। उसी के साथ साथ आपने सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर को भी फाइनल करना है, और जब आप ये कर लेंगे और आपका सीडीसी का अकाउंट और आपका जो ट्रेडर अकाउंट है वो खुल जाएगा, तो अब आप बाय और सेल कर सकते हैं शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स। जो शरिया जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसको यूज करते हुए आप बाय एंड सेल कर सकते हैं। और सबसे अहम बात ये कि यहाँ पर भी जो फंड्स आपके आप चाहें तो रिपैट्रिएट भी कर सकते हैं। इसमें कतन कोई अप्रूवल की या कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होगी। थोड़ी सी बात चूंकि स्टॉक एक्सचेंज की हो रही है, तो स्टॉक एक्सचेंज से जो लोग वाकिफ हैं और जो लोग डील करते हैं, वो देखते होंगे कि अक्सर केसी 100 इंडेक्स, केसी 30 इंडेक्स, इसके जो है वो इंडेक्स बना हुआ आता है, और उसका उतार चढ़ाव हमें नजर आता है। कराची स्टॉक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने मिजान बैंक के साथ मिलकर अगेन विद कोलैबोरेशन वी हैव डेवलप्ड TSX KMI ऑल शेयर इंडेक्स। दिस इज स्पेशली फॉर द शरिया कंप्लायंट शेयर्स। इस इंडेक्स में तमाम कंपनी सिर्फ वो हैं जो कि शरिया कंप्लायंट है, वो तकरीबन 217 कंपनी है। इसी के साथ साथ TSX KMI 30 इंडेक्स भी मौजूद है, जिसमें 30 वो कंपनियां हैं जो कि शरिया कंप्लायंट कंपनीज है, बट दे आर मोस्ट लिक्विड शरिया कंप्लायंट कंपनीज। तो ये 2 इंडेक्स हैं, इनकी भी मूवमेंट आपको डेली बेस पे नजर आती है। आप जब स्क्रीन पर जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज के और ट्रेडिंग करते हैं, तो वहां पर आपको और इंडेक्स के साथ साथ TSX KMI ऑल शेयर इंडेक्स और KMI 30 इंडेक्स भी नजर आता है। अब अक्सर सवाल लोगों का ये होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिंग थ्रू मिजान बैंक, या अगर मिजान बैंक और जो शरिया कंप्लायंट जो प्लेटफॉर्म है उसमें और एक आम प्लेटफॉर्म में क्या फर्क है। तो थोड़ा सा हम आपको एक जिसे कहते हैं कि ब्रीफली आपको ये बता देते हैं कि जब आप शरिया कंप्लायंट ट्रेडिंग करते हैं या शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स पे काम करने का आपका इरादा है और आप मिजान बैंक के थ्रू सीडीसी में अकाउंट खुलाते हैं, तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं, आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं शरिया कंप्लायंट शेयर्स की। आप ऑड लॉट्स में बाय एंड सेल कर सकते हैं। आप T+2 बेसिस पर आप अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं। वह जब आपने कोई शेयर परचेज किया तो आप फौरी तौर पर उसको नहीं बेच सकते, आपको T+2 या मानिए आपको वेट करना पड़ेगा जब वो शेयर्स आपके पास उसकी डिलीवरी आ जाएगी, फिर यू कैन सेल दैट। आप शरिया कंप्लायंट IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिजान बैंक इज वेरी एग्रेसिव इन दिस साइड। IPO में भी आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और आप इसके थ्रू जो आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है उसके डिविडेंड्स भी आपको मिल सकते हैं। क्या चीज नहीं हो सकती, आप नॉन शरिया कंप्लायंट शेयर्स में आप काम नहीं कर सकते, और वो एक बड़ी लिस्ट है नॉन शरिया कंप्लायंट शेयर्स की जिसमें आप काम नहीं हो सकता। डे ट्रेड नहीं हो सकता, शॉर्ट सेल नहीं हो सकता, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई चीज आपके पास नहीं हो और आप सेल कर दें।
आप फ्यूचर में आप बाय सेल नहीं कर सकते, फ्यूचर शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, मार्जिन फाइनेंसिंग नहीं हो सकती, और अनपेड जो राइट शेयर्स हैं उनकी परचेज और सेल नहीं हो सकती। ये वो चीजें हैं जो कि नहीं हो सकती, जिसकी वजह से जो प्लेटफॉर्म बनता है ब्रोकर का वो बड़ा एक्सक्लूसिव होता है, स्पेशली फॉर द शरिया कंप्लायंट स्टॉक ट्रेडिंग। इसके साथ साथ हमने बात की कि आप शेयर्स के साथ साथ सुकूक में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो तकरीबन आपके पास सामने ये लिस्ट है। सुकूक बुनियादी तौर पर इस्लामिक बॉन्ड्स हैं, उन्हें सुकूक कहते हैं। तो केई का सुकूक मौजूद है, हब पावर कंपनी का सुकूक मौजूद है, दाऊद हर्कुलस कंपनी का सुकूक है, एंग्रो पॉलीमर, फातिमा फर्टिलाइजर्स, हास्कोल और पाकिस्तान एनर्जी सुकूक। ये वो सुकूक हैं जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं अगर आपने मिजान बैंक के थ्रू अपना सीडीसी अकाउंट खुलवा लिया है। इसकी जो मजीद तफसीलात है इंशाल्लाह ताला, वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव बदियुद्दीन साहब विद अस, ही विल डेफिनेटली गो इन डिटेल ऑफ ये मजीद इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम जो एक और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की, उसके हवाले से कुछ बता दूंगा। दिस इज अ शरिया कंप्लायंट एंड अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम फॉर द एनआरपीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जस्ट टू रिमाइंड यू के ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, these are not owned by Mizan Bank, ये मिजान बैंक के सर्टिफिकेट्स नहीं है, these are issued by State Bank of Pakistan। और इसके लिए एक अगेन शरिया कंप्लायंट पूरा मैकेनिज्म तैयार किया गया है, एक कंपनी बनाई गई है, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट कंपनी, जो कि आपके इस फंड्स को मैनेज करेगी और जो भी फंड्स हैं उनको इजारा के तहत फाइनेंस किया जाएगा गवर्नमेंट को, और जो उससे फिर प्रॉफिट होगा वो एक मैकेनिज्म के तहत, जो कि मुदारबा का मैकेनिज्म है और शरिया कंप्लायंट मैकेनिज्म है, उसके तहत वो जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें शेयर होगा। ये मुदारबा बेस्ड शरिया कंप्लायंट इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है। इट्स ऑफर्ड इन ओनली 2 करेंसीज, पीकेआर एंड यूएसडी, और दीगर करेंसीज में नहीं है। इट इज अप्रूव्ड बाय द शरिया कमेटी ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और ये जो शरिया कमेटी है यही सुपरवाइज करती है उस एसपीवी को। इसके जो प्रॉफिट रेट्स हैं, जैसे अरफुल इस्लाम साहब ने बताया था, बहुत अट्रैक्टिव है, एक्सपेक्टेड रेट्स हैं बहुत अट्रैक्टिव है, और इसमें रिपैट्रिएशन की अगेन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप फंड्स दोबारा अपने होम कंट्री में ले जा सकते हैं। ये तकरीबन 5 टेन्योर्स में आपको अवेलेबल होगा, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल, 3 साल और 5 साल। फिक्स्ड प्रॉफिट है 10% का उन प्रॉफिट्स, इसके अलावा कोई और टैक्स नहीं होगा इस पर, और इसकी प्री मैच्योर एनकैशमेंट भी हो सकती है, यानी अगर आप टाइम से पहले इनकैश करना चाहें तो उसका भी पूरा एक मैकेनिज्म मौजूद है। क्योंकि ये इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, ये कन्वेंशन से थोड़ा से बाद लॉन्च हुआ, क्योंकि इसका पूरा मैकेनिज्म तैयार हो रहा था, और एक जो दिल का इत्मीनान जो कि हम अपने कस्टमर्स को देते हैं कि जब आप इस्लामिक सर्टिफिकेट्स में इशू करते हैं तो आपको ये कंफर्ट होता है कि आप हलाल इनकम की तरफ जा रहे हैं। और इसका भी जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो बहुत आसान है। जिस तरह हमने सीडीसी अकाउंट के लिए एक प्रोसेस डिफाइन किया है, उसी तरह आप जब वेबसाइट पे जाएंगे, उसी रोशन डिजिटल अकाउंट पे के पेज पर नया आपको ये भी ऑप्शन मिलेगा, टू इन्वेस्टमेंट इन नया पाकिस्तान इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। आप उस पर अप्लाई करेंगे। जब आप अप्लाई करेंगे तो अगेन आपसे अकाउंट नंबर मांगा जाएगा, और अकाउंट नंबर के साथ साथ आपका वन टाइम पासवर्ड होगा, आपकी ईमेल पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, आप उसको वेरीफाई करेंगे। जब आप उसको वेरीफाई कर देंगे तो फिर आपसे अमाउंट मांगा जाएगा, कितनी अमाउंट आपने इन्वेस्ट करनी है, किस करेंसी में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, किस टेन्योर के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। ये तमाम चीजें जब आप क्लिक करेंगे और आप जो टर्म्स एंड कंडीशन है मुदारबा की जो एग्रीमेंट है उसका टर्म्स एंड कंडीशन को आप पढ़कर जब एग्री करेंगे, सबमिट करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपका जो डिजिटल इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट्स हैं वो आपके सामने या स्क्रीन पर मौजूद है, और अगेन दोनों इन यूएसडी एज वेल एज पाक रुपी में बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही अच्छे रिटर्न्स हैं। ऐसे रिटर्न्स इस वक्त आपको कहीं पर अवेलेबल नहीं होंगे, लिहाजा इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ये जो सेशन है इसमें डेफिनेटली हम थोड़ा बहुत आपके साथ कवर कर सकें, लेकिन अगर आपको कोई सपोर्ट, कोई हेल्प मजीद चाहिए तो हमारा जो कॉल सेंटर है इट्स 24/7, 2 नंबर है कॉल सेंटर के जो कि अवेलेबल हैं। आप उन कॉल सेंटर के नंबर पे कॉल कर अपनी गुजारिशात भी कर सकते हैं, कोई अगर शिकायत है, कोई अगर मालूमात है वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने 2 व्हाट्सएप नंबर्स भी अवेलेबल किए हैं, आप उन व्हाट्सएप नंबर्स पर हमारी टीम के साथ व्हाट्सएप के जरिए कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे इब्तिदान आपको बताया गया कि आपको रिलेशनशिप मैनेजर भी मिलेगा जिसके साथ आपका राब्ता होगा, लेकिन
इसके बाद भी अगर कोई चीज़ आपको समझ में, अगर आप समझते हैं कि मजीद चाहिए, तो वेबसाइट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी गुड वेबसाइट, बहुत अच्छी तरह पॉपुलेट हुई है विद लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, FAQs मौजूद है उसके अंदर, और हमने कोशिश किया है कि जैसे जैसे लोगों के सवालात, लोगों की क्वेरीज आती हैं, हम उन्हें FAQs का पार्ट बनाते हैं. That's all from my side. Thank you very much for being patient listener, और इंशाल्लाह ताला we are there to support you. Thank you very much. Over to you, Ahmed. थैंक यू रज़ा फॉर अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन. आई होप कि आपकी इस प्रेजेंटेशन से जो सवालात रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से या नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के हवाले से हमारे जहन में थे, लोगों के जहन में थे, वो आपने आंसर किए, और आपने बड़ा अच्छी तरीके से बताया कि मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, शरिया कंप्लाइंट सुकूक भी हैं, शरिया कंप्लाइंट शेयर्स भी हैं, और इसके साथ साथ इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की स्कीम भी है. अब हम अरशद साहब इस वक्त स्टेट बैंक से आप मौजूद हैं सर? आई थिंक अरशद साहब को कहीं जाना था, तो अरशद साहब निकल गए, तो अभी नूरुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इंशाल्लाह लेट्स प्रोसीड विद द प्रोग्राम जैसे आपने प्लान किया है. नाउ हम अपने नेक्स्ट स्पीकर की तरफ जाते हैं. फरूख खान साहब स्टॉक एक्सचेंज के, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. He's a experienced and a senior professional in the industry. He's a qualified chartered accountant from England and Wales, and he also holds a BA in economics and finance from University of Manchester. With 30 years of experience in diversified field. So फारूक साहब आपकी तरफ आते हैं कि कैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है, और NRPs कैसे इसको देखें. जी फारूक साहब. थैंक यू सिद्दीकी साहब और आरिफुल इस्लाम एंड मोहम्मद रज़ा साहब. बहुत इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन थी जो आप लोगों ने शेयर की. तो मेरे ख्याल में जो आई थॉट कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होएगा आपके ऑडियंस के लिए, क्योंकि बाहर के लोग कई बार काफ़ी साल हो चुके होते हैं उनको पाकिस्तान छोड़े हुए, उनको शायद इतनी अप टू डेट नॉलेज नहीं होए कि जो हमारी रेगुलेटरी और ट्रेडिंग एनवायरनमेंट है उसमें क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं. तो आई थॉट मैं उसके बारे में थोड़ा सा शेयर कर लूँगा, और थोड़ा सा जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं PSX में और जो हमारी रीसेंट परफॉर्मेंस रही है उसके ऊपर मैं कुछ शेयर कर लूँगा. तो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन एंड सॉरी जी. जी. So to start with, as you know, the world has been going through a very difficult phase, और Pakistan is no exception to that. जो COVID-19 की वजह से जो crisis आया, both economic as well as social. But I think it is gratifying कि पाकिस्तान के अंदर, with the very proactive and aggressive stance taken by the government in terms of its fiscal policies, monetary policies, and very importantly the social policies undertaken by them, Pakistan has come out relatively better, not without challenges, but relatively better compared to many other regional countries and economies. And PSX also, with the full support of SECP and other stakeholders, we took all steps कि stock market जो है वो trade करे smoothly, unlike other regional markets like Sri Lanka, Bangladesh, which had to shut down. We did not close the market even for a minute, trading even for a minute, despite a very challenging operating environment. And the result of all of these, mashallah, thank God, is that today Pakistan is amongst the top performing markets in the world. Or I would add that this is not the first time PSX has had this honor of being the best performing market in Asia and one of the top 5 performing markets in the world. अगर आप लॉन्ग टर्म में भी देखें तो PSX delivered some of the best returns in the world to long term investors. और recently आप लोगों ने देखा होगा, बल्कि कल ही अनाउंस हुआ था कि the Pakistan rupee has also been one of the best performing currencies in Asia in recent weeks.
तो जो ओवरसीज से जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था PSX में, उनको एक्चुअली लास्ट फ्यू मंथ्स में डबल बेनिफिट हुआ है, बोथ द benefit of well-performing market as well as the benefit of a rising Pakistani rupee. Farooq, is it possible इसको आप full screen कर दें presentation को, just at the अच्छा। bottom? जी, I will. The next. अच्छा, it's okay, don't worry. अच्छा, and found it. Okay, is that okay? ये ठीक है, please carry on. Gee, sure. So, the role and importance of capital market is sometimes not fully appreciated, and what a significant role they play in tackling, many of the structural imbalances that Pakistan's economy faces, whether it's the low savings rates, the low investments rates. And here, I just wanted to share over the last 5 years, for example, both through equity and debt offerings, companies have raised over 765 billion rupees from listings on PSX, and that has also provided excellent investment opportunities for investors. And our mission is very, very clear, to provide a transparent and efficient marketplace. और ये बहुत important चीज़ है कि it should be a robust trading platform, और इस पे I will touch upon later the recent developments that we are undertaking in this. For those who are not familiar, I thought it will be interesting for you to just see the range of instruments that are listed on the PSX, and you will see that just about every segment of the economy is represented. इसमें दो significant areas हैं जो missing हैं, जो I hope with these recent developments will be overcome. एक है real estate और construction का sector, और ये रोशन डिजिटल अकाउंट में जिस तरह आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, आप लोग रियल एस्टेट में डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. And secondly is the agricultural sector. And both these sectors are a focus of the current government through the construction package and various agri reforms. So I hope that these sectors will also be represented soon on the exchange. But as you can see, all the major industries are well represented on the exchange. Here I just wanted to share कि जो हमारा regulatory और जो ecosystem है, PSX is one of the oldest exchanges in Asia. It started operating back in 1947, 1948. Karachi Stock Exchange, which was the predecessor of PSX, and there is a well established rules, conventions, and regulations that have developed over this time. And we PSX and KSC have a long and distinguished history and have played a key role in building up this ecosystem, setting up the national clearing company, setting up the central depository company, the commodities exchange, which is actually not on this slide, but it's a separate entity, and PSX acts as the frontline regulator for the stock market and the capital market intermediaries. उसके साथ we have a well-developed system of brokers, asset management companies, और जो CDC जो बहुत important role play करती है, I'm sure Badi Saab will touch upon it in his presentation. But I think it's important to realize that our ecosystem and our regulations are, mashallah, world class. Recently, जो पहले open outcry system होता था, वो सब कुछ तो change हो गया from 1991 when the stock market opened to international investors. But in the last few years, some more significant changes have taken place, which give further confidence to investors.
The three stock exchanges, Lahore, Islamabad, and KSC, were merged to give them scale, and they became one, Pakistan Stock Exchange. Uske saath, the stock exchange was made into a corporate entity and was demutualized. Uska matlab ye hua कि जो trading rights or ownership structure were segregated. तो पहले the brokers used to own the exchange. That is no longer the case, ताकि कोई भी perceived या real conflict of interest नहीं होए. PSX is now itself a listed company, and there was a strategic sale process that was carried out, and three of the largest exchanges, not just in China but in the world, have taken a 40% shareholding in PSX. Another 15% is held by other foreign investors, and the balance is with a large group of domestic investors. This has provided a lot of strength to PSX. And for example, one of the things that we are doing is we are working with one of our partners, Shenzhen Stock Exchange, and we are completely redoing our trading and surveillance IT platform to bring it up to date and make it completely world class, and make sure that PSX continues to operate as a world class exchange well into the 21st century. It is a very significant change which will make not just our trading system very transparent and robust, but will also provide us state-of-the-art surveillance system, ताकि any kind of market abuse or any other things can be detected and tracked very, very effectively. And we are also sharing the surveillance system with the SECP, so they will also have access to the same surveillance system. These are some of the more recent developments. As you know, the last 7-8 months have been very challenging, but we have continued to make progress. We did for the first book building issue, did a landmark 200 billion Pakistan Energy Sukuk, which you can also invest in, through your Roshan digital accounts. We have launched exchange traded funds. The IPOs, which were really, the IPO market was closed for the last 15 months. Since July, 3 IPOs जो हैं वो हुए हैं, and all of them are performing well in the secondary market. और most importantly, ये जो Roshan digital accounts launch हुए हैं, and I'm grateful to the central bank, SECP, and all the banking partners, particularly Mizan Bank, that they have worked very closely with PSX and CDC to make sure that stock market investment opportunities are also available through the Roshan digital accounts. And the last quarter, we have had record volumes of trading in the stock market. As I was discussing earlier, it is not just in recent days, but any investor who has taken a long-term view on PSX PSX has delivered a return which has been significantly better than most other international asset classes, particularly in the emerging markets. However, despite this performance, our valuations remain very competitive. In the region, Pakistan has some of the lowest price earning ratios and has some of the highest dividend yields. And to close, I would just like to share this recent development. Exchange traded funds or ETFs is a recent financial innovation. पिछले 10-15 साल में ये develop हुई है, मगर it is now probably the single largest asset class in the world, and over $7 trillion are managed as exchange traded funds globally. And I'm very, very happy, and I'm thankful to all these asset management companies that they've worked with PSX. Now ETFs are also available on PSX, and for any investor who either doesn't have the time or the expertise to look at and invest in individual stocks, ETFs are an ideal instrument because they provide the ease of being able to trade like in a single stock, but they provide a very low cost exposure to a basket of shares. So with one trade, you can get exposure to a diversified investment portfolio. Mizan का भी Sharia compliant ETF है, and there are others as well. So I just want to share this
because I thought this could be particularly of interest to investors and Pakistani diaspora investors as a easy way to get exposure to PSX investment opportunity. I will stop there and will be happy to take any questions or clarify anything further when we get to that question. Thank you so much. Thank you, Farooq Saab, for a comprehensive overview of stock market, Pakistan stock market की performance क्या है, उसके options क्या हैं, ख़ासतौर पे आपने का exchange traded fund मौजूद हैं, शरिया compliant list of stocks हैं जो काफ़ी सारी है जो शरिया compliant है और I'm sure stock market शरिया compliant जो investors हैं उनके लिए बहुत सारी facilities आहिस्ता आहिस्ता लाता जा रहा है. Now, our next speaker is Mr. Badiuddin Akhtar Saab. He is the CEO of CDC Central Depository Company. He is again a very senior, professional with experience of over 20 years. He is also a fellow of Cost and Management Accountant Pakistan. Also holds ACMA degree from UK. So, Badiuddin Saab, welcome onto our webinar. And आपसे पूछेंगे कि कैसे CDC का रोल थोड़ा सा बताइएगा, हाउ सीडीसी फैसिलिटेट द इन्वेस्टर्स और कैसे वो एक कस्टोडियन का रोल होता है, कंफर्ट देता है इन्वेस्टर को कि जो पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है कि उसका पैसा जो है वो एक महफूज तरीके से है. जी, ओवर टू बदियुद्दीन. Thank you very much, Ali. Thank you very much. First of all, Arif Saab, Farooq Saab, and other participants and all the fellows of the overseas Pakistanis, Assalamu alaikum, and thank you very much for joining today. This is an important webinar on the Roshan Digital account through Mizan Bank and their investment in the Sharia compliant securities and institute. Where Razane has given a very comprehensive presentation and cover almost all the aspects. So मैं यहाँ पे थोड़ा सा brief कर दूँगा कि what exactly the role of CDC here for this entire journey of the Roshan Digital account through various banks and especially with the Mizan Bank Limited. So first of all, this आप सबको पता है कि this is a landmark achievement by State Bank of Pakistan, and then SCCP, PSX, and CDC has capitalized this initiative and divert some investment in the Pakistan Stock Exchange. Abhi the Farooq Bhai has explained in detail what exactly the role of PSX and the performance of the PSX, and it is almost always the best performing market in the world, despite many challenges and many allegations on the stock market. But कि जब से मैं stock market में काम कर रहा हूँ, I have always seen this is always a very good return from the investment perspective. First of all, तमाम लोगों के लिए जैसे अली ने कहा कि what is CDC, those who are not familiar with the function of the CDC, let me just briefly give you idea. The Central Depository Company is a self-regulatory organization who has been formed under a special law, which is the Central Depositories Act in 1997. And under the Act, we have developed a comprehensive and centralized system, which is called a Central Depository System. And the affairs of the company is governed under the Securities Act 2015. So the legal and the lawmaking for this special company is very strong. All the operation, all the affairs of the company is tightly regulated, monitored by the SCCP as well. So CDC, right now the CDC is the only sole depository in the country to provide electronic custody of all the securities issued in Pakistan, and all the accounts and for the trading market, all the account maintained through CDC for all the settlement, the movement of securities are done through the electronic platform of the Central Depository System. Right now, for the numbers we have 152 billion number of shares in the Central Depository System. The value which is around more than 36 billion US dollars. And not only the depository function, CDC is also providing the trusteeship services to the mutual fund industry, which is then capturing around 98% market share and holding the asset under management. The current value is around 6.5 billion US dollars. CDC is also the largest share registrar in the country, providing about more than 200 companies, and as for the listed and unlisted companies we have in the CDC is around more than 782 companies, which include the listed companies more than 500 and other unlisted companies as well. CDC, by using the state-of-the-art technology, we are also providing various services to other sectors as well. For example, we are providing insurance sector, we are providing the insurance depository services to all the insurance industries. We have developed an online Zakat depository system as well.
See, this is all brief about the CDC, what exactly the CDC is. We have around more than 250,000 sub account and about more than 60,000 direct investor account in CDC, whereby you can open your account just like a bank for the securities holding directly with the CDC. So let's come to the point, what exactly the role of CDC in the Ocean Digital account. For the stock market investment, the investor has then two options that they can open an account directly with the broker, or they can settle their trade directly through CDC. For the Mizan Bank Limited, CDC and Mizan Bank has a great collaboration. Always we did on many projects as well. So Roshan Digital के अंदर भी CDC और Mizan Bank की collaboration से we are providing a direct settlement services to all the Roshan Digital account holder from the Mizan Bank. इसमें होएगा ये कि जब आप अपना रोशन डिजिटल अकाउंट मीज़ान में ओपन कर लेंगे, देन आफ्टर ओपनिंग योर अकाउंट आपके पास यू हैव टू टेक 3 स्टेप फॉर द स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट. फर्स्ट, आपको अपना कंसेंट सबमिट करना होगा मीज़ान बैंक को कि टू शेयर देयर इंफॉर्मेशन जो अकाउंट ओपनिंग की थी विद CDC. सेकेंड, आपको टर्म्स एंड कंडीशन को ऑनलाइन एग्री करना होगा विद ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द account opening at CDC, account opening at the broker and other stock market entities, PSX and the NCCPL with the clearing company of Pakistan. जब आप कंसेंट दे देंगे, आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लेंगे, देन यू हैव एन चॉइस कि आपको अपने मर्जी के ब्रोकर को सेलेक्ट करना होगा. जैसे अभी आपको रज़ा ने बताया कि वी हैव फॉर द मीज़ान बैंक फॉर द शरिया कंप्लायंट साइट पे वी हैव 3 ब्रोकर्स हैव. उसमें से आप अपनी चॉइस के ब्रोकर को सेलेक्ट करें. 3 काम करने के बाद ये तीनों काम भी ऑनलाइन डिजिटल आप कर रहे होंगे. वंस यू सबमिट दिस बटन, दैट द इंफॉर्मेशन एंड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इज ऑटोमेटिकली पास ऑन टू CDC एंड देन CDC विद इन 24 आवर्स आपका डायरेक्ट अकाउंट CDC में भी ओपन हो जाएगा एंड देन योर ट्रेडिंग अकाउंट विद योर चॉइस द ब्रोकर, वो आपका अकाउंट वहां पर भी ओपन हो जाएगा. वंस आपका अकाउंट ओपन होने के बाद CDC आपको तमाम आपका अकाउंट ओपनिंग पैकेज आपको वाया ईमेल सबमिट करेगी. आपके बैंक को भी इन्फॉर्म करेगी कि आपका स्टॉक मार्केट का अकाउंट ओपन हो गया है और आपके तमाम अकाउंट की डिटेल आपको थ्रू ईमेल आपको मिल जाएंगी. जब आपके पास तमाम डिटेल्स आ जाएंगी, आपको ऑनलाइन पोर्टल का पासवर्ड, 1 टाइम पासवर्ड, आपकी ईमेल आईडी, ईच एंड एवरीथिंग वंस यू रिसीव, उसके बाद आप डायरेक्टली अपना काम स्टॉक मार्केट में शुरू कर सकते हैं. स्टॉक मार्केट में काम शुरू करने के लिए जैसे हमने बताया कि मीज़ान बैंक के लिए हमने आपके साथ डायरेक्ट सेटलमेंट सर्विसेज का मॉड्यूल रखा हुआ है. वहाँ आपका अकाउंट डायरेक्टली खुलेगा. जब आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना होगा तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपने कितनी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करनी है. आप जो अमाउंट ट्रांसफर करेंगे मीज़ान के रोशन डिजिटल अकाउंट से, जितनी अमाउंट आप CDC अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और आपकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर वो पैसे ब्रोकर को ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल किए जाएंगे. आप अपने ब्रोकर को एज पर द PSX रूल्स एंड रेगुलेशन आप उसको व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, फोन पे, जो अलाउड मैकेनिज्म है, आप अपनी मर्जी की सिक्योरिटीज जो शरिया कंप्लायंट सिक्योरिटीज हैं, जो कि KMI इंडेक्स है, उसमें से जिस सिक्योरिटी में आप चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं. आप ब्रोकर को आप इंस्ट्रक्ट करें ट्रेडिंग के लिए. ब्रोकर आपके बिहाफ पे स्टॉक में ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करेगा एज पर द अमाउंट और सिक्योरिटीज अवेलेबल विद CDC अकाउंट. ये तमाम काम ऑनलाइन इंटीग्रेटेड है. जैसे भी फरूख भाई ने बताया कि अपॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह सिंस मेनी इयर्स CDC स्टॉक एक्सचेंज एंड NCCPL का सिस्टम इज टाइटली इंटीग्रेटेड है. वंस ट्रेडिंग एग्जीक्यूटेड, तमाम इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली विद इन अ सेकेंड तीनों ऑर्गेनाइजेशन आपस में शेयर करती हैं. जब आपकी ट्रेडिंग हो जाएगी, ट्रेडिंग की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली NCCPL के पास जाएंगी और NCCPL से जो आपने ट्रेडिंग की है उसकी T+2 पे जो सेटलमेंट है वो सारा काम CDC आपके बिहाफ पे कर रहा होगा. आपकी तमाम पेमेंट जो डायरेक्टली NCCPL को करनी है, शेयर्स की डिलीवरी जो NCCPL के जरिए आपको ट्रांसफर करवानी है या आपके अकाउंट में बाई के केस में ड्रॉप नहीं होनी है, वो सारा काम CDC आपका परफॉर्म करके दे रहा होगा. वंस द सेटलमेंट इज डन, तो इसमें आपकी जो सबसे बड़ी जो इस पूरे प्रोडक्ट की खूबी है कि जैसे योर शेयर्स एंड योर जो मनी बोथ आर इन सेफ कस्टडी विद CDC. इसके अंदर ब्रोकर के पास सिर्फ और सिर्फ आपकी ट्रेडिंग की इंस्ट्रक्शन होंगी एंड ट्रेडिंग के बाद आपकी अमाउंट और आपकी सिक्योरिटीज दोनों आपके डायरेक्ट कंट्रोल में CDC अकाउंट में होंगी, जिसको आप ऑनलाइन एनी टाइम 24/7 आप उसको एक्सेस कर सकते हैं. आप उस अकाउंट की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, आप उसके अंदर अपनी वैल्यू को चेक कर सकते हैं. और इसका रिवर्स वाइसी वर्सा, व्हेनेवर यू वांट टू मूव योर कैश बैक फ्रॉम CDC अकाउंट टू योर मीज़ान ओशन डिजिटल अकाउंट, आप जस्ट इंफॉर्मेशन आप हमें दें और आपके पैसे CDC अकाउंट से आपके रोशन डिजिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे. जैसे आपको रज़ा ने बताया था कि इसकी रिपेटिशन इज अ वेरी इजी प्रोसेस. वन ऑफ द की फीचर ऑफ दिस
entire RD regime, the repatriation is very easy. For the stock market, तमाम repatriation की जो reconciliation है, CDC, SBP has graciously authorized CDC to perform all the repatriation reconciliation with reference to the stock market investment. जो भी आप stock market में invest करेंगे, उसके बाद उसके अंदर कितना commission broker का किया, क्या टैक्स लगा, कितना कैपिटल गेन टैक्स लगा, या कितना आपने उस पर अर्न किया, वो सारा रिपेट्रिएशन की रिकंसिस्टेंस सीडीसी ऑनलाइन मीज़ान बैंक को सबमिट करेगा और मीज़ान बैंक ऑनवर्ड जो स्टेट बैंक का प्रोसेस है उसको सबमिट करेगा. दिस एंटायर थिंग इज ऑनलाइन एंड एजेंट. वी हैव परफॉर्म अ ड्यू डिलिजेंस एंटायरली विद मीज़ान बैंक लिमिटेड. तो इसके अंदर जो तमाम चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपकी ऑनलाइन विदाउट एनी हैजल, ये सारी की सारी आपके पास जारी होंगी. तो जस्ट अ सिंपल प्रोसेस टू कट द प्रेजेंटेशन, द ब्रीफिंग शॉर्ट. Repeat three things again, that you have to give your consent, you have to submit your terms and condition agreement online, and then you have to choose your broker, and rest of the work done by CDC with the help of Mizan Bank Limited. इसके अंदर इसके आप CDC का अकाउंट खोलते हैं तो आपको अदर सहूलियात भी आपको मुहैया होंगी, जिसके अंदर आप अपनी तमाम फंड ट्रांसफर की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप राइट अलॉटमेंट के लेटर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप IPO जो आपकी IPO, अगर जैसे फरूख भाई ने बताया कि जो भी IPO पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आ रहा होगा, आप डायरेक्टली थ्रू CDC अकाउंट से पार्टिसिपेट कर सकते हैं. आपकी तमाम कैपिटल गेन टैक्स की तमाम रिकंसिलेशन, कैपिटल गेन टैक्स की सारी इंफॉर्मेशन ब्रोकर के साथ, जितनी आपकी पेमेंट की रिकंसिलेशन है वो CDC आपको ऑनलाइन सारी प्रोवाइड करता रहेगा. फॉर दैट पर्पजेज CDC ने भी तमाम रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स के लिए एक डेडिकेटेड कॉल सेंटर डेवलप किया हुआ है 24/5 बेसिस के ऊपर, जहां डेडिकेटेड स्टाफ 24 घंटे अवेलेबल है आपके तमाम सवालात के जवाब देने के लिए. इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप जो आपके हस्ते रजा ने ऑलरेडी कवर कर लिया है कि आपके पास जो एज पर द शरिया कंप्लायंट जो आपको ट्रेडिंग करनी है, इसके अंदर डे ट्रेडिंग अलाउ नहीं है. इसके अंदर आपको T+2 बेसिस के ऊपर आप किसी भी सिक्योरिटीज में आप सेटलमेंट करवा सकते हैं, और ये 100% DVP बेसिस के ऊपर है फिर विद CDC कि आप, यानी इसमें मार्जिन पे ट्रेडिंग अवेलेबल नहीं होगी. जितने आपके पास अमाउंट अवेलेबल है और जितनी सिक्योरिटीज अवेलेबल है, आप एज पर द अमाउंट एंड द सिक्योरिटीज आप मार्केट में बाय एंड सेल कर सकते हैं. इट मींस इज अ डायरेक्ट रेडी मार्केट में आप अपनी मर्जी के KMI इंडेक्स में अपनी मर्जी के सिक्योरिटीज पे, और जो 3 ब्रोकर अभी अवेलेबल हैं और इंशाल्लाह आगे जाके और भी ब्रोकर शरिया कंप्लायंट में आ जाएंगे, तो आप अपनी चॉइस के ब्रोकर के साथ इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. इसके अलावा वी आर हियर फॉर एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू द DSS और द स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट. वी आर अवेलेबल हियर एंड थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू बदियुद्दीन साहब. बड़ा अच्छा आपने ओवरव्यू दिया कि CDC का क्या रोल है, कैसे CDC के मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, और जैसे आपने कहा कि 3 स्टेप का प्रोसेस है कि कोई अगर रोशन डिजिटल अकाउंट कस्टमर इन्वेस्ट करना चाहे तो वो उस 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके CDC में अकाउंट खोल सकता है और शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट कर सकता है शेयर्स में. और दूसरा बड़ी अच्छी बात यह कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म CDC का है वो कस्टमर्स को वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ और डेटा ऑनलाइन ऑन द डेस्कटॉप दे सकता है या ऑन द मोबाइल दे देगा, ताकि आप अपने मुल्क में बैठे हुए अपने शेयर्स की कारोबार किया जो आपने उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मिल सकती है. So now we will move towards the question answer sessions. क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं. हमारा जो Q&A टीम है वो एक मुसलसल आपके सवालात के जवाब दे रही है. कुछ सवालात ऐसे हैं जो हमने सोचा कि अपने पैनलिस्ट की तरफ रेफ़र करते हैं, और उसमें सबसे पहले मैं फ़र्रुख साहब के पास आता हूँ कि फ़र्रुख साहब, ये एक सवाल आया PSX के हवाले से कि ऑल्दो मैं ख्याल में बदियुद्दीन साहब ने भी रेफ़र किया कि मैं कितनी जल्दी अकाउंट को इन्वेस्ट कर सकता हूँ PSX में अगर मैंने रोशन डिजिटल अकाउंट खोल लिया है. देखिए, रोशन डिजिटल अकाउंट के साथ साथ आपको ब्रोकर अकाउंट भी खोलना होता है. तो जब आपका बैंक अकाउंट खुल जाए तो आपके बैंक के, जिस तरह मीज़ान बैंक के पेज पे जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगी कि किन ब्रोकर्स के साथ आप अकाउंट खोल सकते हैं. तो उसके अंदर भी जो है बता दी मैं जनरली 1-2 दिन लगते हैं उसमें अकाउंट खोलने में, और फिर आप ट्रेड कर सकते हैं. 24 आवर्स आपका CDC का अकाउंट भी खुल जाएगा और ब्रोकर के पास आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन हो जाएगा. तो आप डायरेक्ट 24 आवर्स में आपके दोनों अवेलेबल हैं. और आपने जो सवाल किया था कि कितनी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है, अमाउंट की इन्वेस्टमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. जितनी अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने RD अकाउंट से वो आप ट्रांसफर करें अमाउंट, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें. जी, एक सवाल इसी से रिलेटेड था कि क्या ये ब्रोकर अकाउंट लाजमी होता है खोलना? ये भी कुछ हमारे NRP कस्टमर्स पूछ रहे हैं.
जी बिल्कुल, बिकॉज स्टॉक मार्केट में जो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर होता है और जो आपको प्रोटेक्शंस मिलती हैं, वो और उसके बाद जो सारा रिपैट्रिएशन का भी जो सिलसिला होता है वो ऑफिशियली आपको थ्रू अ ब्रोकर जो है अपनी बाइंग और सेलिंग करनी होती है। सर एक और सवाल आया है, वो ये पूछ रहे हैं कि ये रिस्क का जो प्रोफाइल है स्टॉक मार्केट का, तो इसके बारे में इन्वेस्टर या एनआरपीज को क्या ख्याल रखना चाहिए व्हेन दे कम टू स्टॉक मार्केट? देखिए जी, दैट इज़ ए क्वेश्चन जो कि हर इंडिविजुअल का एक डिफरेंट आंसर होएगा, बिकॉज हर इंडिविजुअल का अपना एक रिस्क एपेटाइट और रिस्क प्रोफाइल होता है। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट जो है वो एक रिस्क भी कैरी करती है और उसके लिए उसका एक रिटर्न भी मिलता है। जो आप लोगों का रिस्क पार्ट ऑफ जो पोर्टफोलियो है, अगर किसी के पास $100 या $100 100 दिरहम है, तो उसमें से आपको अपना एक पोर्टफोलियो आपको कंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि कितना उसमें से आप सेफ इन्वेस्टमेंट्स में रखना चाहते हैं। जिस तरह ये नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स हो गए जिनमें एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, मगर वो क्योंकि रिस्क कम है तो रिटर्न भी उतना ही कम होएगा। और कितना आप जो है अपना पोर्टफोलियो एलोकेट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में या सुकूक्स में, जहाँ पे थोड़ी रिस्क भी ज़्यादा होएगी और मगर रिटर्न का पोटेंशियल भी ज़्यादा होएगा। तो हर इंडिविजुअल को ये चीज़ सोच समझकर अपना एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना चाहिए और एक पोर्टफोलियो जो है व्यू लेना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए हमेशा। और मैं दूसरी चीज़ कहूँगा कि ऑफन मैंने बहुत देखा है और मुझे भी बहुत कॉल्स आती हैं कि जी कोई टिप दे दें, कोई आइडिया बताएं किस चीज़ में इन्वेस्ट करें। तो मैंने देखा अनलेस आप बहुत ही खुशकिस्मत हों, लकी हों या बहुत ही टैलेंटेड हों, तो ट्रेड करने में आप अच्छा कई बार पैसे बना सकते हैं, मगर ज़्यादातर इस तरह की ट्रेडिंग में मैंने देखा है कि लोगों का नुकसान ही होता है। अच्छे शेयर्स को देखकर एक लॉन्ग टर्म व्यू लेकर इन्वेस्ट करें, तो मैंने देखा है कि जनरली लोगों ने अच्छा रिटर्न कमाया है। थैंक यू फारूक साहब। हमारे साथ नूरुल्लाह साहब स्टेट बैंक से मौजूद हैं। एक आध सवाल स्टेट बैंक के हवाले से भी आ रहा है कि ये पूछा ये जा रहा है कि अगेन लोगों का एक कंसर्न है कि जो पैसा हम पाकिस्तान भेज रहे हैं, क्या क्या उसको वापस निकालने में कोई पाबंदी आ सकती है, कोई एडिशनल चार्ज लग सकता है, या कोई टैक्स का कोई एलिमेंट आ सकता है? तो ये कुछ क्वेरीज थी जो नूरुल्लाह साहब आपकी तरफ में रेफर करता हूँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अहमद साहब, एंड आई अप्रिशिएट मीज़ान बैंक का जो इनिशिएटिव था फॉर दिस वेबिनार। तो इसमें देखिए जो रिपेट्रिएशन है, जैसे रज़ा साहब ने बताया कि ये एक वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर है जो शायद पहले इस तरह से अवेलेबल नहीं था। और जो जो इसका ऑब्जेक्टिव था बेसिकली प्रोडक्ट का, थोड़ा सा मैं ये भी आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारा डायस्पोरा था उसे पाकिस्तानी बैंकिंग के साथ लिंक करना था ताकि उनकी बैंकिंग नीड्स सारी पूरी हो सके वाइल दे आर अब्रॉड। और उसमें जो सबसे बड़ा जो इशू आता था उन्हें ये आता था कि अगर वो फॉर एग्जांपल नॉन रेजिडेंट है एंड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ट्रांजैक्शन नहीं होती तो अकाउंट उनके डॉर्मेंट हो जाते थे, डीएक्टिवेट हो जाते थे, और उसके लिए उन्हें शायद दोबारा जब किसी वक्त ट्रैवल करते थे तो फिर आते थे, एक्टिवेट होता था। तो हमने इस अकाउंट को जिस वक्त डिज़ाइन किया, हमने कोशिश की कि जितने भी कंसर्न्स थे जो हमारे नॉलेज में आए थे कि जो हमारा डायस्पोरा है उनको फेस आते हैं इन ओपनिंग एंड ऑपरेटिंग द अकाउंट, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कि सारे इश्यूज एड्रेस इसमें एड्रेस करें। अब जहाँ तक बात रिपेट्रिएशन की आती है, तो रिपेट्रिएशन जैसे मैंने अर्ज किया कि एक डिस्टिंक्टिव फीचर है, तो उसके लिए आपको किसी किस्म का कोई अप्रूवल नहीं रिक्वायर्ड है। चूंकि ये इसका जो एक और मेजर फीचर है कि आपको हो सकता है मतलब इन योर एंटायर लाइफ आपको कभी बैंक को विजिट ना करना पड़े, तो ये एक एंटायर डिजिटल एक्सपीरियंस है। जब आपको पैसे चाहिए वापस, आप डिजिटली बैंक को रिक्वेस्ट करेंगे और बैंक ने किसी से नहीं अप्रूवल लेना, ना कोई इंटरनल अप्रूवल रिक्वायर्ड है, ना कोई स्टेट बैंक से अप्रूवल रिक्वायर्ड है। बल्कि इसमें जो रजा साहब ने पहले एक्सप्लेन भी किया, जो पेमेंट इसका जो यूसेज है उसमें भी हमने कोशिश ये की है कि नॉट जस्ट कि जी वो पाकिस्तान के अंदर कोई भी पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे रूटीन की उनकी पेमेंट्स होती है, हमारा डायस्पोरा फैमिली को पेमेंट करते हैं, यहाँ पे कोई फ़ी की पेमेंट है, कोई इंश्योरेंस की पेमेंट है, जो भी उन्होंने पेमेंट्स करनी होती है रूटीन में, वो भी पेमेंट्स कर सकते हैं। इसको ऑनलाइन परचेजेस कर सकते हैं। इवन अगर उनके पास कार्ड्स हैं, वर्चुअल कार्ड उनको इशू होते हैं, या एटीएम कार्ड्स हैं जो जो एक स्कीम बेस्ड है वीज़ा मास्टर के फॉर एग्जांपल, तो दुनिया में कहीं भी चाहे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो है। बाकी जहाँ तक टैक्सेस की आपने बात
बाकी टैक्सेस देखिए अभी तक तो इसके ऊपर जो स्टैंडर्ड है टैक्सेशन जो ट्रांजैक्शन के हवाले से है वो अप्लाई करते हैं, तो टैक्सेस वाली रिजीम एक डिफरेंट है एफबीआर की जो इसके ऊपर है। बाकी जो रेमिटेंसेस के हवाले से हैं, जिस वक्त ये आउटवर्ड जाती है तो उस वक्त हर बैंक के डिफरेंट चार्जेस हैं। हम बैंकों से इंगेज भी किया हुआ है कि वो उस पर कोशिश करें कि जब आपके यहाँ से रिपेट्रिएशन होती है फंड्स की तो उसमें मिनिमल चार्जेस हों, लेकिन बहरहाल ये बैंक से बिजनेस भी रन करना है, ये इट्स नॉट जस्ट के, तो ये इंडस्ट्री वाइड जो प्रैक्टिस है, जो आउटवर्ड चार्जेस हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं दे आर सब्जेक्ट टू चार्जेस। अब बैंक की अपनी कॉल है कि उसके ऊपर आप जो भी चार्जेस को कंसेशन या मिनिमाइज करना चाहें कर सकते हैं। तो थैंक यू नूर साहब, आपने ये कहा कि एक नॉर्मल चार्ज अप्लाई होता है और टैक्स रिजीम जैसे नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है उसमें 10% फ्लैट है, बाकी जो एफबीआर नोटिफाई करता है। अच्छा, एक और सवाल इसी से रिलेटेड है, कुछ कई सारे एनआरपीज ने किया कि अगर मैं पाकिस्तान आ जाता हूँ, एनआरपी हूँ, अब पाकिस्तान आ गया 3 साल बाद, तो मेरे पैसे का क्या होगा? क्या ये मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाएगा, मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा, या मैंने अगर इन्वेस्टमेंट की है तो क्या रेगुलेशन क्या कहती है इस पे? देखिए उसमें जो इनिशियली आप जो अकाउंट होल्डर से कमिटमेंट कर रहे हैं रिपेट्रिएशन की, दैट वुड रिमेन देयर कि अगर आप पाकिस्तान आ जाते हैं तो आपके पास एक लार्जली दो चॉइसेस, एक तो ये कि आप पाकिस्तान में अपना एक रेजिडेंट अकाउंट खोलें और उसके अंदर फंड ट्रांसफ़र कर लें, जो आज भी ऑप्शन है। तो आज भी अगर किसी रेजिडेंट अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहें रोशन डिजिटल अकाउंट से कर सकते हैं। अगर आप कुछ अरसे बाद पाकिस्तान फॉर गुड ट्रांसफ़र हो जाते हैं, आ जाते हैं, तो अपना रेजिडेंट अकाउंट खोलें और उसमें फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप अपने आरडी में पैसे रखे हुए हैं और और उसको वापस भिजवाना भी चाह रहे हैं, तो वो भी आपको जो हमने कमिटमेंट की है रिपेट्रिएशन की, वो हम उस कमिटमेंट को उस वक्त भी ऑनर करेंगे कि पाकिस्तान आने के बाद भी अगर आप इस अकाउंट से रिपेट्रिएट फंड करना चाहेंगे तो उसकी भी आपको इजाज़त होगी। और उस पॉइंट इन टाइम पे आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, जो आपने इस अकाउंट से की होंगी, वो इन्वेस्टमेंट की भी जो प्रोसीड्स डिसइन्वेस्टमेंट्स आती हैं, प्रॉफिट आती हैं, वो भी उसमें क्रेडिट हो सकेंगे। थैंक यू नूर साहब। रजा साहब, 2-3 सवाल आपसे मैं पूछूंगा। एक सवाल तो ये किया कि मेरा आरडीए अकाउंट जो है वो ब्रिटेन पाउंड यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड या यूके पाउंड में है, तो क्या मैं उससे भी इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो रुपये में है या डॉलर में है उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ? और क्या मैं अपने अगर 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया और 3 साल बाद मुझे पैसे की ज़रूरत है तो क्या मैं वापस ले जा सकता हूँ या मैं 5 साल मुझे स्टे करना होगा? जी बिल्कुल, इसमें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जैसे हमने इब्तिदा में भी बताया था कि बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसमें आप फिलहाल हमने सिर्फ जो गवर्नमेंट ने और जो स्टेट बैंक ने जो अलाउ किया वो सिर्फ 2 करेंसीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पीकेआर में और यूएस डॉलर्स में। अगर आपका रोशन डिजिटल अकाउंट अगर पाक रुपी में है तो फिर आप पाक रुपी में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अगर आपका आरडीए किसी और करेंसी में, जीबीपी में, यूरो में है, तो फिर आप यूएसडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आप पीकेआर में नहीं करेंगे, लेकिन फॉरेन करेंसी में आप यूएसडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो दूसरा सवाल, बिल्कुल इसका ऑप्शन मौजूद है कि अगर आपने अगर 3 साल के लिए आपने अगर एक इन्वेस्टमेंट किया नया पाकिस्तान में और आप साल भर बाद आप अगर निकलना चाह रहे हैं तो आपको ये प्रीमेच्योर इनकैशमेंट का ऑप्शन मौजूद है। जिस तरह इब्तिदा में मैंने बताया था कि का पूरा मैकेनिज्म है, आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर वेटेजेस दिए जाते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, तो हर जो कैटेगरी है, हर इन्वेस्टमेंट का जो टेन्योर है उसका अलग वेटेज है। तो अगर आप 1 साल बाद से अगर निकलते हैं तो आपका जो वेटेज है वो चेंज हो जाएगा और आपने जो कंप्लीट पीरियड किया है उसके मुताबिक आपको प्रॉफिट मिलेगा और प्रीमेच्योर का पूरा ऑप्शन आपके पास मौजूद है। थैंक यू रजा। बदियुद्दीन साहब, अहमद साहब एक इजाज़त दीजिएगा मुझे इसमें इसी क्वेश्चन के ऊपर एक और, कि अगर किसी ने फॉर एग्जांपल जीबीपी में अकाउंट खोला हुआ और वो उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं जो एनपीसी पीकेआर में, तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि वो अकाउंट होल्डर एक पीकेआर अकाउंट भी खोल ले और फिर इंटरऑपरेटेबिलिटी हमने दी है कि अपने जीबीपी अकाउंट से पीकेआर में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, वहां से उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये एक रूट अवेलेबल। दूसरा एक आरडीए खोल लें और उसमें कर लें। बदियुद्दीन साहब, आपकी तरफ आता हूँ। एक सवाल यह है कि व्हाट आर द ट्रांजैक्शन चार्जेस फॉर द फंड ट्रांसफर बिटवीन सीडीसी बैंक एंड ब्रोकर? जो आपकी तरफ पैसे भेजे 1 लाख फिर वहां से आगे गए, तो क्या चार्जेस होते हैं इसमें? फंड ट्रांसफर के ऊपर तो कोई चार्जेस नहीं है कि सीडीसी में जो फंड ट्रांसफर होंगे उसके ऊपर तो कोई चार्जेस नहीं है। इसका एक फीचर था जो मैं बताना भूल गया कि डीएसएस की जितनी सर्विसेज हैं, डीएसएस की सर्विसेज सीडीसी ने फ्री ऑफ कॉस्ट रखी हुई हैं। इसके अंदर आपकी अकाउंट ओपनिंग फ़ी भी हमने वेव कर दी है, अकाउंट मेंटेनेंस फ़ी भी नहीं है। सिर्फ जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करेंगे, जब आपकी शेयर्स की मूवमेंट होएगी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, मतलब जब सेटलमेंट होती है उसके चार्जेस है बहुत ही नॉमिनल। अदरवाइज फंड ट्रांसफर के ऊपर सीडीसी के कोई चार्जेस नहीं है।
अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम मीज़ान बैंक टू सीडीसी, कोई चार्जेस सीडीसी नहीं ले रहा है इसके। बद्री साहब, इसी से एक सवाल था रिलेटेड, ये डायरेक्ट बैंक मॉडल और डायरेक्ट सेटलमेंट सर्विसेज, इस पे भी लोग कंफ्यूज हैं थोड़ा सा, कोई थोड़ी सी क्विकली अगर आप बता सकें। ये बड़ा अच्छा सवाल है। एग्जैक्टली आप बताएं कि फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल के हिसाब से आज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के 2 मॉड्यूल हैं। पहले तो एक जो बरसों से चला आ रहा है कि आप डायरेक्टली ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलें, ये वहां पॉसिबल है जहां पे बैंक ने ब्रोकर के साथ डीवीपी मॉडल एग्री किया हुआ है, यानी कि आपका सब अकाउंट ब्रोकर के पास होएगा और आपके पैसे भी ब्रोकर के पास होंगे, और एट द डे एंड बैंक उस ब्रोकर के साथ डील करेगा फॉर द रिपेटिशन बेसिस के लिए। ये एक सेपरेट क्लॉज के तहत जो कि साकरा मॉडल कहलाता है, स्पेशल कन्वर्टेबल रुपी अकाउंट, उसके जरिए आप काम कर सकते हैं। जो रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर आपका ऑप्शन है कि आप सीडीसी के साथ अकाउंट खोलें, आपके शेयर्स और पैसे सीडीसी के पास होंगे और वो सेटलमेंट डायरेक्टली सीडीसी कर रहा होगा। यानी कि इट डिपेंड्स ऑन द ब्रोकर एंड द बैंक। अगर बैंक और ब्रोकर आपस में ये एग्रीड है कि वो डीवीपी ब्रोकर को अलाउ कर रहे हैं, तो ब्रोकर के पास आप सब अकाउंट खोल के अपनी ट्रेड अकाउंट भी इसके पास होएगा और सब अकाउंट भी इसके पास होएगा और वो सेटलमेंट डायरेक्टली कर रहा होगा। थैंक यू। सवालात की एक लंबी लिस्ट है, सवालात हमारे पास आ रहे हैं। हमारी टीम ने तकरीबन इस वक्त कुछ 270 सवालात के जवाब दे चुके हैं, लेकिन ये इस शोज़ के भी हमारे जो कस्टमर्स हैं एनआरपीज़, उनका काफ़ी इंटरेस्ट है, लेकिन हमारे पास टाइम लिमिटेड है। हमारी टीम जो है आपके सवालात जो आंसर नहीं हो सके उसको नोट कर लिए गए, वो सवालात हम आपको जवाब के आप उसका ईमेल के थ्रू इसका जवाब देंगे। हमारे व्हाट्सएप नंबर हमने आपके साथ शेयर किए हैं, आप हमारा ईमेल नंबर अभी शेयर किया था रज़ा साहब ने, आप उस पर ये सवालात भेज सकते हैं और इंशाल्लाह आपको इसका टाइमली जवाब होगा। कुछ स्पेसिफिक कंप्लेंट्स भी हैं, कुछ लोगों को कोई ऑपरेशन मुश्किल भी आई है, तो वो भी हमारी टीम ने नोट कर लिए और इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू सॉल्व दीज कंप्लेंट्स एंड दीज इश्यूज एज सून एज पॉसिबल। अब मैं क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए आरिफुल इस्लाम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर टू क्लोज द सेशन आपकी तरफ में। जज़ाकल्लाह अहमद एंड थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं जो हमारे माशाल्लाह पैनलिस्ट हैं, फ़र्रुख खान साहब, बदियुद्दीन अकबर साहब, नूरुल्लाह साहब फ्रॉम स्टेट बैंक, इनका शुक्रिया अदा करूँगा। आपने अपना टाइम निकाला इस वेबिनार के लिए, एंड ऑल्सो जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, ऑल दोज NRPs who have attended and participated in this webinar, आप सबका शुक्रिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा जो जी ये बहुत ही एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, और ये हम खुशकिस्मत हैं जो आजकल जो कोविड की वजह से जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, इसके बावजूद ये एक फ़ैसिलिटी हमें स्टेट बैंक ने अवेलेबल किया है कस्टमर्स के लिए। दिस इज़ एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी और मैं इनकरेज करूँगा जो आप इसका फ़ायदा उठाएं और इंशाल्लाह पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न्स अभी फ़र्रुख साहब ने अभी हमसे शेयर किया, जो स्टॉक मार्केट पाकिस्तान जो स्टॉक मार्केट है दैट हैज़ बिन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट्स इन द वर्ल्ड। इसके अलावा जो बाकी एसेट क्लासेस हैं, रियल इस्टेट है, और आप बैंक या नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो जहाँ पे अभी रज़ा साहब ने शेयर किया रिटर्न्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। आप डॉलर में और रुपये में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं और इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ जो सर्विस मीज़ान बैंक आपको देगा दैट विल बी, मतलब उसमें आप ये फील करेंगे जो दिस इज़ द बेस्ट सर्विस of any bank in this country. So Jazakallah khair. Thank you very much everyone. थैंक यू आरिफ साहब। हमारे पार्टिसिपेंट्स का मैं तमाम जिन्होंने पैनलिस्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे साथ जो कस्टमर्स जूम पे रहे, तो तकरीबन 300 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स रहे। फिर फेसबुक पे हमारे बहुत सारे कस्टमर्स ने हमें सुना, और इंशाल्लाह आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही हैं कि कोई सुकूक के बारे में मज़ीद डिटेल चाहता है, कोई शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक्स के बारे में चाहता है, तो हम ये हमारी वेबिनार सीरीज़ है जो कंटिन्यू रहेगी, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द कुछ और स्पेसिफिक ऑप्शंस के ऊपर तफसीली जो टॉपिक होगा उसके ऊपर हम टेक्निकल सेशंस को भी प्लान कर रहे हैं। तो स्टे ट्यून विद मीज़ान बैंक एंड वंस अगेन थैंक यू फ़र्रुख साहब, थैंक यू बदियुद्दीन साहब, नूरुल्लाह साहब, थैंक यू for joining us today. Thank you for all the panelists, all the participants of the webinar and our Facebook audience. इसके साथ ही मैं इस वेबिनार को एंड करता हूँ और जज़ाकल्लाह खैर एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
Thank you, everyone. Thank you. Jai Hind. Thank Thank you very much. Thank you, everybody. Mizan bhai. you, everybody. Thank you. Take care, ji. Allah Hafiz. Take care, ji. Okay.